Hello everyone and my dear students, welcome to my channel The Pharma Pathshala. Today's topic is the hospital and its classification. In the last video, I have already discussed about the proper definition of the hospital and its detailed function. You can see this video on my channel The Pharma Pathshala. In the today's video, I am going to discuss about the classification of the hospital on different basis. आपने पहले सुना होगा कि हॉस्पिटल बहुत सारे टाइप के होते हैं. प्राइमरी हॉस्पिटल होते हैं, सेकेंडरी हॉस्पिटल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स होते हैं. स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स लाइक फॉर द स्पेशलाइज्ड डिजीज़, ओके, लाइक हार्ट के हॉस्पिटल्स होते हैं, स्किन के हॉस्पिटल्स होते हैं. सो दिस इज़ फॉर द स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल. तो डिफरेंट बेसिस पे हॉस्पिटल को कैसे क्लासीफाई किया गया है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ द हॉस्पिटल, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ. ओके, so let's start the video. The topic is the classification of hospitals, यानी कि हॉस्पिटल्स के टाइप्स क्या क्या हैं, क्या किस तरह से इनको क्लासीफाई किया गया है. सो फर्स्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव. ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल्स आर क्लासिफाइड एज द फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल्स, सेकेंड स्पेशल हॉस्पिटल्स, थर्ड teaching cum research hospitals. Okay, second is the on the basis of administration, ownership, control or financial income. The first type on this basis is the governmental or public. Second is the non-governmental or private. Third is the semi-government hospitals and fourth is the voluntary agency hospitals. Third classification is on the basis of length of stay. Length of stay यानी duration. Okay, first type is the short term or short stay hospital. Stay less than 30 days, यानी कि वो हॉस्पिटल जहाँ पे आप 30 दिन से कम रह रहे हैं, that hospitals are called as the short term hospitals or short stay hospitals. Second is the long term or long stay hospitals. यहाँ पे क्या है कि जो आपकी ड्यूरेशन है वो मोर देन 30 डेज़ है, यानी कि आप किसी हॉस्पिटल में 30 दिन से ज़्यादा रह रहे हैं, दैट हॉस्पिटल इज़ कॉल्ड द लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल. Fourth classification is on the basis of type of medical staff. So there are in this classification there are two types. First is the closed staff hospitals and second is the open staff hospital. इसके बाद आता है fifth on the basis of bed capacity or size. So first in this category first type is the small hospitals, यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं up to 100 बेड्स होते हैं. ओके, सेकेंड टाइप इज़ द मीडियम हॉस्पिटल्स मोर देन 100 और लेस देन 300 बेड्स. अगर किसी हॉस्पिटल में 100 से ज़्यादा और 300 से कम बेड्स हैं तो दैट हॉस्पिटल्स आर कॉल्ड एज द मीडियम हॉस्पिटल्स. Third is the large hospitals. Large hospitals means the number of beds are more than 300. Okay. Sixth is the on the basis of type of care. Okay. First primary care, second secondary care, and third is the tertiary care. Next topic is next classification is on the basis of teaching affiliation. Okay. First under this category first type is the teaching hospital and second type is the non-teaching hospitals. Okay, so next category is on the basis of regionality. Okay, under this category first is the regional, second district, third is the Upzila Health Complex, fourth is the Union Health and Family Welfare Centers, and next is the community clinics. Okay, next classification is as per WHO. According to the WHO ने क्या किया है, हॉस्पिटल्स को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया है. तो अकॉर्डिंग टू द WHO फर्स्ट कैटेगरी इज़ द रीजनल हॉस्पिटल, सेकंड इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, थर्ड इज़ द रूरल हॉस्पिटल्स. ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे आपके सारे क्लासिफिकेशन, डिफरेंट बेसिस पे हॉस्पिटल्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है, ये क्लासिफिकेशन थे. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द डिटेल about the hospitals, different types of the hospitals. So now I am going to discuss about the general hospitals. General hospitals are meant to provide wide range of various types of healthcare but with limited capacity. They care for patients
with various diseases, conditions for both sexes to all ages, medical, surgical, pediatrics, obstetrics, eye and ear, etc. Usually general hospitals are devoid of super specialist medical care. Okay, so जनरल हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल्स होते हैं जो क्या करते हैं, वाइड रेंज की हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, बट जो उनकी कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है. ये वो हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे हम हर तरह की बीमारी, हर तरह की डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं. पर क्या है कि वहाँ उनकी जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है. बहुत ज़्यादा कैपेसिटी के हाई कैपेसिटी के हॉस्पिटल्स ये नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, जनरल हॉस्पिटल्स कहते हैं. एंड ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स की केयर प्रोवाइड करते हैं ये पेशेंट्स को, और ये ऑल एजेस के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं. मेडिकल एंड सर्जिकल कंडीशंस को ट्रीट करते हैं. पेडियाट्रिक्स, आई, ईयर, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये ऑल ओवर सारी जो पेशेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, बट इनकी जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है. नेक्स्ट इज़ द स्पेशल हॉस्पिटल्स. स्पेशल हॉस्पिटल्स जैसा कि आपको नाम से समझ सकते हैं, यानी कि ये क्या है कि स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड डिजीज़ को डिनोट करते हैं, लाइक ऑर्थोपेडिक्स हॉस्पिटल्स, मैटरनिटी हॉस्पिटल्स, पेडियाट्रिक हॉस्पिटल्स, जेरियाट्रिक और ऑन्कोलॉजी एक्सेट्रा. ये हॉस्पिटल्स कैसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो एक स्पेशल डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए ही बनाए जाते हैं. वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो स्पेशली एक डिज़ीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, या पेडियाट्रिक्स होते हैं, या ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं. तो वो जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो स्पेशल डिजीज़ की केयर के लिए बनाए जाते हैं. दैट हॉस्पिटल्स आर कॉल्ड एज द स्पेशल हॉस्पिटल्स. थर्ड वन इज़ द टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल्स. Colleges is attached for medical, nursing, dental, pharmacy educations. Okay, main objective is to provide medical care, teaching and research is the secondary. टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल्स का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि ये क्या है कि एक हॉस्पिटल है, यानी हॉस्पिटल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पेशेंट की केयर होगी. ओके, सेकेंड थिंग इज़ द टीचिंग एंड रिसर्च. सेकेंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि टीचिंग का भी काम किया जा रहा है और रिसर्च भी हो रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट. सो ये जो इस कैटेगरी के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो जैसे कि जो हॉस्पिटल्स कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से अटैच्ड होते हैं, दैट हॉस्पिटल्स आर कॉल्ड एज द टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ द हॉस्पिटल इज़ द गवर्नमेंटल और पब्लिक हॉस्पिटल्स. ओके, they are owned, administered or controlled by the government. They provide free care for the patients, and the government hospitals are owned by the मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ, द यूनिवर्सिटी और अदर्स. ओके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो कौन से हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए गए हों, गवर्नमेंट ने उसे बनाया हो, या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हों. वो जो अथॉरिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ओ करती हैं, वो अथॉरिटीज़ होती हैं द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ, any university or other authorities. Okay, so a public hospital or government hospital is a hospital which is owned by a government and receives government funding. Okay, they developed by receiving the government funding. In some countries this type of hospitals provide medical care free of charge, the cost of which is covered by the government reimbursement. ये जो सर्विसेज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, फ्री ऑफ चार्ज होती हैं. ओके, यानी कि वहाँ की जो सर्विसेज होती हैं वो फ्री होती हैं. सो दिस टाइप ऑफ द हॉस्पिटल्स आर कॉल्ड एज द गवर्नमेंट और पब्लिक हॉस्पिटल्स. Next is the private hospitals. Private hospitals are privately owned, are controlled by an individual or group of the physicians or citizens or a private organizations. Private hospitals यानी privately किसी भी organizations के थ्रू ये रन हो रहे हैं या किसी individual person के थ्रू रन हो रहे हैं. That type of the hospitals are called as the private hospitals. For example, Square hospitals. Next टाइप ऑफ द हॉस्पिटल इज़ द सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल. यानी सेमी का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो क्या जो हॉस्पिटल सेमी गवर्नमेंट होते हैं, दैट हॉस्पिटल्स रन्स बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटी लाइक कैंट बोर्ड हॉस्पिटल्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ द हॉस्पिटल इज़ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आर विच आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, रन और कमर्शियल लाइन्स लाइक अपोलो वॉलंटरी एजेंसी हॉस्पिटल. ये क्या होते हैं कि नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स होते हैं. ठीक है, इनकी फंडिंग क्या होती है कि कहीं किसी बड़े कॉरपोरेट से आती है. तो दैट टाइप ऑफ द हॉस्पिटल्स आर कॉल्ड एज द
corporate hospitals. Next type is the short term or short stay hospitals. Short term और short stay, जैसा कि द टर्म के थ्रू आपको पता चल रहा होगा कि शॉर्ट स्टे जहाँ पे क्या है कि हमारा स्टे का ड्यूरेशन कम है. ओके, सो वो वैसे हॉस्पिटल जहाँ पे 90% पेशेंट लेस दैन 30 डेज़ एडमिट रहते हैं या 30 डेज़ एडमिट हुए होते हैं, वो हॉस्पिटल क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म और शॉर्ट स्टे हॉस्पिटल्स कहलाते हैं. इट मीन्स दीज आर हॉस्पिटल्स वेयर over 90% of all patients admitted stay less than 30 days. That type of the hospitals are called as the short term or short duration or short stay hospital. Next type of the hospital is the long term or long stay hospitals. Okay, these are hospitals where 90% of all patients admitted stay 30 days or more than 30 days. Okay, वो हॉस्पिटल जहाँ पे स्टे पेशेंट का 30 दिन या 30 दिन से ज़्यादा हो रहा है, दैट टाइप ऑफ द हॉस्पिटल वाज कॉल्ड एज अ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ड्यूरेशन और लॉन्ग स्टे हॉस्पिटल्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ द हॉस्पिटल इज़ द क्लोज्ड स्टाफ हॉस्पिटल. In the closed staff hospital, physicians are held responsible for all medical activities in the hospital, including the diagnosis, treatment एंड फ़ी पेइंग एंड इमरजेंसी. क्लोज्ड स्टाफ हॉस्पिटल यानी कि क्या इस हॉस्पिटल की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, फिजिशियंस के ऊपर होती है. ठीक है, डिजीज़ को डायग्नोस करना, डिजीज़ को ट्रीट करना, फ़ी पे करना एंड इमरजेंसी सर्विसेज. यानी कि क्या है कि यहाँ पे स्टाफ कम है और डॉक्टर ही क्या कर रहा है कि डिजीज़ को डायग्नोस कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, फीस ले रहा है एंड इमरजेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है. दैट टाइप ऑफ द हॉस्पिटल्स आर कॉल्ड एज द क्लोज्ड स्टाफ हॉस्पिटल. नेक्स्ट इज द ओपन स्टाफ हॉस्पिटल्स. दिस टाइप ऑफ हॉस्पिटल परमिट्स अदर फिजिशियन इन द कम्युनिटी टू एडमिट एंड ट्रीट पेशेंट्स टू द हॉस्पिटल एंड ट्रीट देम. ओके, यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट आप नंबर ऑफ फिजिशियंस यहाँ पे काम कर सकते हैं और कम्युनिटी से क्या पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं, उन्हें ट्रीट करते हैं और उन्हें उनकी डिजीज़ को क्योर करते हैं. तो ये था स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हॉस्पिटल्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं. सो द नेक्स्ट कैटेगरी of the hospital is based on the level of the care. So according to the level of the care, there are three categories of the hospital. First is the primary care hospital, second secondary care hospital, and third is the tertiary care hospital. These categories are based on the level of the care. Okay, so let's describe the primary care hospital. So the primary care is to डे टू डे हेल्थ केयर गिवन बाय अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर. आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन टर्म है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, जो लोकली आपके जिस भी एरिया में होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो ये जो सेंटर्स होते हैं प्राइमरी केयर हॉस्पिटल्स और प्राइमरी केयर सेंटर्स जो भी होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, डे टू डे हेल्थ केयर होती है. ठीक है, यहाँ पे पेशेंट से डायरेक्टली डॉक्टर कांटेक्ट में रहता है और उसको ट्रीट करता है. और इन केस अगर उस पेशेंट को किसी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की नीड होती है या किसी अदर स्पेशलिस्ट या उसको अदर किसी हॉस्पिटल में रेफ़र करना है, तो वो प्राइमरी केयर हॉस्पिटल से फिर आगे बढ़ती है. सो फॉर द एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी केयर हॉस्पिटल इज़ द उप जिला हेल्थ कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी केयर हॉस्पिटल, और दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी केयर हॉस्पिटल. सेकेंड इज़ द सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल. सेकेंडरी केयर मीन्स कि they provided the specialized services. Okay, this is the first level of referral services and more complicated services are dealt with which is beyond the scope and capacity of the primary level. यानी कि जो प्राइमरी केयर हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी से जब कोई भी हेल्थ केयर सर्विस उसकी कैपेसिटी से बाहर हो जाती है, तो फिर वो कहाँ पे जाती है, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला अस्पताल जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स. सो दिस लेवल इज़ असाइंड टू प्रोवाइड सम स्पेशल सर्विसेज पर्टिकुलरली इन द इंटरनल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स, gynecology and pediatrics. So these are usually 50 to 200 bedded hospitals. यानी कि जब भी प्राइमरी केयर की सर्विसेज की कैपेसिटी से बाहर कोई सर्विसेज आती हैं, तो प्राइमरी केयर से वो सर्विसेज ट्रांसफ़र होती हैं सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स में. सो सेकेंडरी केयर्स की जो यूजुअली बेड की कैपेसिटी होती है वो 50 to
200 होती है। और यहाँ पे जो लेवल ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं लाइक इंटरनल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनोकोलॉजी एंड पेडियाट्रिक्स। इसके बाद आता है आपका टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स। दिस लेवल डील्स विद हाईली स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइडेड रीजनल और सेंट्रल लेवल ऑफ द हॉस्पिटल्स, ओके, सच एज द teaching hospitals, super specialized hospitals like NICVD, NEO, cancer hospitals, infectious hospitals, mental disease hospitals and also included in this level। ये क्या होते हैं कि आपके नेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स जो होते हैं, ठीक है, डिविजनल हॉस्पिटल्स जहाँ पे होते हैं, वो हॉस्पिटल्स आपके क्या होते हैं, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। यानी कि जब सेकेंडरी लेवल से कोई भी पेशेंट की सर्विसेज या हेल्थ केयर सर्विसेज जब सेकेंडरी लेवल की कैपेसिटी से बाहर हो जाती हैं, then after this that services are transferred to the tertiary care hospitals, and tertiary care hospitals are highly specialized hospitals like the cancer hospitals, infectious hospitals, mental disease hospitals. Here the full form of the NICVD is the National Institute of Cardiovascular Disease and NEO is the National Institute of Oceanology। आपको ये फुल फॉर्म मैंने बताया है, ये भी क्या है, एक तरह से स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द हॉस्पिटल्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन ऑन डिफरेंट बेसिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। In case any queries, kindly ask in the comment section and thanks for watching the Pharma Pathshala.